Good afternoon, all of you. Welcome back to chemistry class. I hope that आप सब बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब आएगी chemistry class. Of course, you love chemistry. So today again we have a very good interactive class. You know why? In the previous class we have done relative lowering of vapor pressure, which was one of the first colligative property. Okay, recall in your mind the formulas which we have taken. We have taken PA equal to P naught A XA, and from that we have done one simple relation. अगर आपको याद है कि in place of XA we have written 1 minus XB, then we have opened it. So at the end we have given P naught A minus PA upon P naught A equal to XB. XB को जब हमने खोला था तो उसके बदले लिखा था WB upon MB into MA upon WA, because we are dealing with very dilute solution. तो XB में नीचे हमने NB को हटा दिया था. I hope that this much you have remember. PA was the vapor pressure of solution जिसमें solute भी है. P naught A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट था, और P naught A माइनस PA ये था लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इफ़ यू रिमेंबर द मिल्क, जब उसमें शुगर डाला तो वेपर प्रेशर कम हो गया, तो P naught A माइनस PA लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, और P naught A माइनस PA अपॉन P naught A ये पूरा जो था वो था रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो ये पूरा अपन ने कर लिया था. इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं. पहले भी मैंने बोला है जो बच्चे बोर होते हैं न्यूमेरिकल से वो बोर नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है ऐसा होए कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें से जो न्यूमेरिकल आए वो वही होए जो आज अपन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के बहुत ही लाजवाब न्यूमेरिकल्स आज आप करेंगे. आप जब देखेंगे तो खुद ही आपको समझ में आएगा कि हर न्यूमेरिकल हैव एन डिफरेंट एंड अ गुड आइडिया. इज इट क्लियर? सो आई थिंक नो फोबिया with numericals. Love the numericals, love chemistry, mass will come. Is it clear to you? So the first numerical is on the board. You please all of you write down the heading numericals and write the first numerical which is on the board. Hurry up. बहुत अच्छा दिख रहा है, आप सब लिख लें, फिर मैं एक दफा उसको पढ़ दूंगी. या पढ़ती जाती हूँ मैं. जहाँ पर अंडरलाइन करना है वहाँ अपन अंडरलाइन कर लेंगे, which is important to underline. That is an aqueous solution of 2% non-volatile solute. An aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar. Exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of solvent. At the normal boiling point of solvent, a very important line, like a diamond, like a gold, like the video also. So what is the molar mass of the solute? मैं पक्का बोलूँगी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये. इसमें लाइक बनता है, फटाफट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो, बट अच्छा करो. सो हरी अप, फिनिश द न्यूमेरिकल फास्ट माय डियर चिल्ड्रन, देन वी स्टार्ट द आंसर. ओके, तो आपने न्यूमेरिकल यकीनन लिख लिया होगा अभी तक, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है. अब आप देखें अपन को क्या करना है. सबसे पहले बेटा अपन को इसमें वी हैव टू राइट डाउन दी अननोन and the known quantities which are given to us in this numerical. Okay, now listen. A solution aqueous. Aqueous mean water is there. The solute is dissolved in a water of 2% non-volatile solute. My dear, 2% mean what? 2 gram of solute. 2% मतलब 2 ग्राम solute है उसमें, and 98 ग्राम solvent. 2 plus 98, 100 is the mass of solution.
इज इट क्लियर? समझना सीखो। हर बच्चा, इवन जो बच्चा 11 में फॉर एग्जाम्पल 5 लाया है 70 में से, हो सकता है कोई हो भाई, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो भी बच्चा बेटा करने लगेगा अगर आप सिस्टमैटिक वे में सुनो और समझो कि क्या बोला जा रहा है। क्लियर द फर्स्ट लाइन? तो 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मीन्स, नाउ वी विल राइट द आंसर टुगेदर। 2% means 2 gram of solute, okay? And we know that the mass of solute, we have decided together that we will give it a symbol WB. I told you that in case of chemistry, mass and weight is not of any like difference, so we can write W because we don't want to write small m because it is the symbol of molality. So because of this we are writing W is the mass, B we have decided together that B we will take it as a solute. So 2 gram of solute mean this is your WB. Is it clear or not? So 2 gram of solute is your WB. Understood? Then 98 gram of solvent, 98 gram of solvent, that is, according to my experience of 30 years of my life in teaching chemistry and checking the copies and having the paper and each and everything, I know the children which are like having phobia with numericals. You know why? Because they are not able to identify the symbol. जैसे फॉर्मूले में सिंबल्स हैं, उन्हें ये समझ ही नहीं आता क्वेश्चन में कि ये सिंबल में हम क्या लगाएं। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा सिंबल पे इंपॉर्टेंस दिखा रही हूँ कि आपको 98 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट समझ में आ रहा है, बट यू शुड नो ऑल्सो व्हाट द सिंबल ऑफ इट। सॉल्वेंट के लिए ए करा है, मास के लिए W, सो द सिंबल ऑफ इट इज WA. व्हेन यू नो दिस 100% यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो ये तो बेटा पहला जो पार्ट था ना 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, हमें समझ में आ गया। एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ कितना? 1.004 बार। अब देखो ध्यान से समझो, हिंदी में करो क्वेश्चन, न्यूमेरिकल को हिंदी में करते हैं। क्या मतलब? आपके पास पानी था 98 ग्राम, उसमें 2 ग्राम सोल्यूट डालिए। अब ये दोनों मिलकर सोल्यूशन हो गया कि नहीं? ये सोल्यूशन हो गया। तो इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर दिया है वो दिया है 1.004 बार। ये हमारा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, प्योर प्रेशर नहीं है कंपोनेंट का, जिसका सिंबल क्या डिसाइड किया था पिछली क्लास में? PA. सो व्हाट इज PA? PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. सो प्लीज रिमेंबर दैट PA इक्वल टू 1.004 bar. So this is your vapor pressure of solution. So this is mass of solute, this is mass of solvent, this is vapor pressure of solution. ये चीजें हमारे बच्चे के लिए अब ये हो जाना चाहिए कि ये हमें आती हैं, ये कोई नई चीज नहीं है कि we cannot identify. But the special line in the numerical is what? You know, this line at the normal boiling point of solvent. You also please underline it. Okay? ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ सकता है, भले वो बोर्ड है, नीट है, IIT है, ये इसी लेवल के आते हैं क्वेश्चंस, इसके अलावा नहीं आते। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम हैरत करोगे, जैसे ये चैप्टर खत्म होएगा आप एक काम करना, मैं तो आपको बहुत क्वेश्चन वगैरह सब कुछ दूंगी, आपको बहुत कुछ मैं करने वाली हूँ, अभी आपको बताती जाऊंगी मैं क्या कर रही हूँ, बट आप उठाना अपने आप करके देखना। 5 साल के चलो उठाओ, नीट उठा लो, 5 साल के नीट उठा लो, 5 साल के IIT JEE उठा लो, क्वेश्चंस देखना, हर साल सॉल्यूशन में से 1 या 2 आया, वो तुमसे बेटा बन जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर तुमने मेरे साथ हर न्यूमेरिकल जो मैं यहाँ पर करवा रही हूँ वो आपने समझा और अपने आप एक दफा कर लिया उसे। आई एम टेलिंग इट्स अ चैलेंज, आई ऑलवेज गिव चैलेंजेस एंड आई नो माई चिल्ड्रन ऑलवेज एक्सेप्ट द चैलेंजेस। सो क्या ये इतनी लंबी बात क्यों हो रही है? बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? हमें मिल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। उसने तुम्हें इनडायरेक्ट वे में इस लाइन में दिया है, उसने तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिया, तुम्हें वो कंफ्यूज कर रहा है।
तुम्हें वो डिलेमा में रख रहा है कि तुम कहो कि यार पी नॉट ए कहाँ गया मेरा, आई एम नॉट हैविंग पी नॉट ए, आई एम हैविंग डब्ल्यू बी, आई एम हैविंग डब्ल्यू ए, आई एम हैविंग पी ए, एम बी आई थिंक इज द unknown molar mass. Ma is not a problem for me because it is the molar mass of solvent, that is water. I know it is 18. But what about P naught A? नहीं दिया बट दिया है. क्या मतलब नहीं दिया बट दिया है? मतलब ये दिया है. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है मेरे बच्चे? बॉइलिंग लास्ट ईयर 11th में पढ़ा था और स्टेट ऑफ मैटर की जो वीडियो डली है क्रैश नीट और IIT JEE में, उसमें फिर से बताया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है. बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू व्हाट? टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज द लाइन ऑफ गोल्ड, डायमंड एंड प्लेटिनम. यकीनन, क्योंकि जिस बच्चे को ये पता नहीं है वो बच्चा तो यकीनन क्वेश्चन छोड़ के आने वाला है ना, भले उसको कुछ भी पता हो वो छोड़ के आएगा. 1 नंबर उसको फॉर्मूले का मिल जाएगा और नीट और IIT JEE में उसको कुछ नहीं मिलने वाला, और हर कहीं अगर टिक कर दिया तो नेगेटिव में भी जाएगा वो. तो प्लीज रिमेंबर दिस. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब मैं लिखवा रही हूँ कॉपी में ताकि याद रहे बाद में भी. तो ये तो अपन ने लिख लिया. अब आप न्यू लाइन से लिखेंगे, सारे बच्चे मेरे साथ लिखेंगे. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट is the temperature at which the vapor pressure, that is VP, is the temperature at which the vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, becomes equal to atmospheric pressure. Is it clear or not? तो what is the boiling point of solvent? Is the temperature. कौन सा टेम्परेचर? जिस वक्त वेपर प्रेशर उसका बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जानते हैं क्योंकि ये आपको बेटा बार में दिया है ना. एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, बट यू हैव टू टेक इट इन बार. I told you both are nearly similar, but you can't take it nearly similar. You have to take it the exact value here, that is 1.013 बार. हर बच्चा जो देख रहा है ये वीडियो इंडिया में, या मेरा बच्चा या कहीं का भी बच्चा, रट लो प्रेशर बार में कितना होता है. वेपर प्रेशर बार में बॉइलिंग पॉइंट के टाइम कितना होता है? 1.013 बार. और एटमॉस्फेयर में 1 atm, बार में 1.013 बार. इज इट क्लियर? तो P नॉट इज गिवन टू यू ऑलरेडी. जिस बच्चे को ये लाइन समझ नहीं आएगी उसका क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा. नाउ, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द VP एंड द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मीन्स इस बात का मतलब P नॉट A इक्वल टू 1.013 बार. अब समझ में आया क्यों आ रहे हैं 95 अबव? आई एम टेलिंग दिस इज द रीजन. पूरे 10 महीने 12 महीने में ना हर तरह का क्वेश्चन, भले वो NCERT का हो, भले वो कहीं पर भी चैलेंजिंग क्वेश्चन हो, वो आपको या जो प्रीवियस बैचेस जो गए हैं यहां से निकल के उनको दिया जाता है. दिस इज द रीजन दे आर गेटिंग द सिलेक्शन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज इन केमिस्ट्री इन 12th. मतलब मार्क्स बिल्कुल ऐसे होते हैं कि आपको अंदर से अच्छा लगता है बेटा. दिस इज द रीजन, दिस इज द की ऑफ सक्सेस एनीवेयर, किसी भी सब्जेक्ट में, एनी टाइम. क्लियर? तो P नॉट A मिल गया, PA मिल गया, सब कुछ मिल गया. निकालना MB बहुत इजी. इसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे बेटा. सब लोग मेरे साथ फॉर्मूला लिखेंगे, और जिनको याद नहीं है वो याद करेंगे अभी, क्योंकि कहा है मैंने कि साथ साथ चलो. साथ नहीं चलोगे पीछे हो जाओगे, मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूं. नाउ द फॉर्मूला इज P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इक्वल टू XB इन प्लेस ऑफ इट WB अपॉन MB into MA upon WA. This is the formula which we have derived it
in the previous lecture for the relative lowering of vapor pressure. This is this. The relative lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute. इसके ऊपर मुझे एक डेफिनेशन राउल्स की एक और देना है आज. राउल्स की एक तो वो थी जो फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स, और एक यहाँ से भी एक राउल्स की बनेगी, वो अभी अपन इस न्यूमेरिकल खत्म करके एक डेफिनेशन याद से लिख लेंगे. ठीक है. अब तुम्हें निकालना क्या है? पी नॉट ए यू हैव, पी ए यू हैव, डब्ल्यू बी आपके पास है, डब्ल्यू ए यू हैव, एम ए आपको दिया नहीं है, कोई देने की जरूरत नहीं है. इट इज द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18. योर एम इज टू डिटेक्ट व्हाट? एम बी. सो वी विल टेक एम बी सेपरेटली, इट इज बेटर. पिछली क्लास में जो क्वेश्चन था उसमें मैंने यहीं पर कर दिया था, बट मैं यहाँ अलग एम बी ले रही हूँ. उसका रीजन है क्योंकि भाई अपन क्या पता कोई एग्जाम में इस पे फॉर्मूले पे नंबर नहीं दे, कोई भरोसा है किसी साल आ जाए कि नहीं आपने एम बी अलग क्यों नहीं लिखा. तो अपन बिल्कुल सेफ साइड रहते हैं, अपन एम बी अलग लिखते हैं, बहुत आसान है. अगर एम बी यू वांट टू राइट सेपरेटली, दिस विल बिकम इनवर्ट्स, उल्टा कर दो. तो पी नॉट ए, दिस बिकम पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए इंटू दिस इज remain as it is WB into MA upon WA. So this is the formula, and on this formula we have to substitute now. So we are substituting on this formula MB. Let us substitute. What is P naught A value is given to you? 1.013, 1.013 upon this is 1.004. Sorry, 1.013 minus 1.004, 1.013, this is P naught A upon P naught A minus PA. So P naught A is 1.013 minus 1.013 minus what? 1.004, 1.004 into WB. What is WB you have? WB is 2 into molar mass of solvent. Molar mass of solvent we are having 18 upon WA that is given to us, not given, it is given 2%, but we know it is 98. So this is your molar mass, right? I will give you the final answer, and this is 41.3 gram per mole, 41.3 gram per mole. So good question. Put very 3 star and very important. Hurry up. 2 or 1.5 minutes given to you to complete writing the question with its answer in each and everything. Don't forget, as I told you in the previous class again, if you will be writing gram after solving a so good question, if by mistake you have written only gram, you will be getting only 2.5. If you want 3 marks, remember, don't forget to write gram per mole. Is it clear? So hurry up, fast finish the question. लिखते लिखते दिमाग को रिकॉल करो कि क्या नई चीज मैंने इस क्वेश्चन से सीखी. हर न्यूमेरिकल से अपन कुछ नया सीखते हैं. क्या सीखा? कि जहां भी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया जाएगा, दैट टाइम immediately we will be taking P naught A as the 1 atm or 1.013 bar. Hurry up my dear, hurry up my dear. So you can finish the question very fast, and we will solve the next question after this. Please finish it very fast. Now after this we will be solving the next question. I think you have finished it. So I will rub this question, and all the numericals of today's class are very important. So the question number 2, but before that, yes, I told you I will give you the definition. So after writing, you please my dear write down another definition of Raoult's law. Please write down this heading, all of you. Another definition of Raoult's law. Another definition of Raoult's law. Okay, please write down. अब अपन इन्वर्टेड कॉमा खोलेंगे सब लोग. ऑल ऑफ यू स्टार्ट. इन्वर्टेड कॉमा खोलो. राइट. वो था इन दैट केस जो फर्स्ट लिखी थी आपने, बोथ द लिक्विड्स वर वोलेटाइल. यहां पर जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? सुनो पहले. फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट. ठीक है बेटा. द रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to mole
फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अ सो गुड डेफिनेशन। ठीक है, एक दफा क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड में कि डिफाइन राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। कुछ बच्चों ने ये वाली डेफिनेशन लिखी थी जीरो। अगर डिफाइन राउल्स लॉ आता है तो आपकी फ्रीडम है, कोई सा भी लिख दें, लेकिन अगर वोलेटाइल लिक्विड्स का आता है तो फिर वही लिखें जो मैंने पहले दी थी, है ना। और अगर स्पेसिफिकली इसका आता है तो फिर ये लिखें, तो लिखें another definition for Raoult. So start writing all of you. For a solution of non-volatile solute, in a volatile solvent, solution of non-volatile solute in a volatile solvent, the relative lowering of vapor pressure, is directly proportional to the mole fraction of solute, इसके बाद बेटा इन्वर्टेड कॉमा बंद करें और फुल स्टॉप लगा दें और न्यू लाइन से एक और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन दिया जा रहा है, साथ साथ मेरे लिखेंगे हेप्टेन एंड ऑक्टेन form an ideal solution, इतना खुद लिख लो, हेप्टेन एंड ऑक्टेन form an ideal solution at 373 Kelvin. Now the vapor pressure of liquid composition, liquid composition are, now the values are 105.2, 105.2 kilopascal, 105.2 kilopascal and 46.8 and 46.8 kPa. I think you know K stands for kilo and PA stands for Pascal. Kilopascal is the unit of pressure. 1 kilopascal contains 1000 Pascal. Now again, heptane and octane form an ideal solution at which temperature? 373 Kelvin, that is the boiling point of water. The vapor pressure of liquid composition is given to you. I know before you continue writing the next lines of the numerical, you should know in the beginning, जैसे जो बच्चा तेज होता है ना, वो लिखते टाइम समझ जाता है या देखते टाइम समझ जाता है वो कि वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन है अकेला, P0 heptane, pure heptane. This is the vapor pressure of pure octane, P0 octane. Continue the line after this. What will be the vapor pressure? What will be the vapor pressure? What will be the vapor pressure? What will be the vapor pressure of a mixture of 25 gram heptane and 35 gram octane. 25 gram heptane and 35 gram octane. So this is again a good question. Fast finish the lines, then we will be writing the unknown and the known quantities. So it will be easy for us to solve it very fast. Yeah, heptane and octane form an ideal solution, very good.
vapor pressure of liquid composition. So let us start the data which are given to us. Yes, P naught heptane, children, P naught heptane equal to what? 105.2 kilopascal. P naught heptane is given to us 105.2 kilopascal. What about P naught octane? P naught octane is given to us 46.8 kilopascal. ओके, तो P नॉट हेप्टेन मिल गया, P नॉट ऑक्टेन आपको मिल गया है. अब आपको what will be the vapor pressure of the mixture? What is unknown? P total. What is unknown? P total. Before we start continuing, like start तो हो चुका है, continue करने से पहले you know अपन कर क्या रहे हैं? आप कहोगे ना मैडम आप कर क्या रही हो? आपने कहा था न्यूमेरिकल्स करवाना है, तो आप कौन से करवा रही हो? एक अपन ने रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का करा. वेपर प्रेशर और आइडियल सॉल्यूशन के जो एक्सरसाइजेज हैं, जो एनसीईआरटी के खत्म होने के चैप्टर के बाद जो पीछे एक्सरसाइज हैं, उनमें से अपन निकालना है. आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, हर टॉपिक के बाद उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल इंटेक्स और पीछे के वही काम कर रहे हैं बेटा. जैसे आप हो सकता है कहोगे मैडम ये रिलेटिव लॉरिंग तो हमें नहीं लग रहा, ये तो हमें आइडियल का लग रहा है. हाँ तो लगने दो, आइडियल का है तो प्रेशर का है तो आइडियल का, तो वो सब करेंगे. उस जब ये खत्म हो जाएंगे देन वी विल स्टार्ट विद द सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑफ कोर्स नॉट टुडे, द नेक्स्ट लेक्चर करेंगे. ठीक है, तो ये बता दिया बीच में. तो P नॉट ए, P नॉट बी या हेप्टेन ऑक्टेन. P टोटल इज नॉट गिवन टू यू, इट इज योर अननोन. देन अ मिक्सचर कंटेनिंग W हेप्टेन कर दो आप, वेट ऑफ हेप्टेन 25 ग्राम और W ऑक्टेन इज गिवन टू यू 35 ग्राम. अब दिमाग में 1 मिनट में रुकूंगी, आपको ध्यान रखना है क्योंकि फॉर्मूलाज आप सारे याद करते जा रहे हो मेरे साथ, मुझे पता है ये बात. तो आपको यहाँ पहली बात ये सोचना है यहाँ लगाऊं क्या मैं भाई, विच फॉर्मूला आई हैव टू अप्लाई हियर. सोचो 1 मिनट, आई एम गिविंग यू 1 मिनट. हरी अप, थिंक फास्ट, ऑल ऑफ यू थिंक. क्या रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पिछले लेसन वाला में? नहीं, पिछले लेसन में तो मैंने नहीं दिया था, इससे पहले उससे पहले वाले में दिया था, लेकिन पिछले लेसन में भी बताया था उसको. ये पिछले लेसन, उससे लेसन, उसका फॉर्मूला, विच फॉर्मूला. अब तो आ गया होगा याद आ गया? लिखो कमेंट्स में, लिख के बताओ क्या है. एक आधे मिनट में मैं बोलने वाली हूं, उससे पहले लिख के बता दे कोई बच्चा. द फॉर्मूला इज P टोटल इक्वल टू व्हाट? P नॉट A प्लस ब्रैकेट P नॉट B माइनस P नॉट A क्लोज द ब्रैकेट इनटू XB. करेक्ट और नॉट? सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे ये फॉर्मूला कैरी 1 मार्क. नाउ सो लेट अस राइट हियर P टोटल इक्वल टू P नॉट A प्लस ब्रैकेट P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू XB. वेरी गुड. P टोटल चाहिए, XB तो है नहीं हमारे पास. क्या कोई ऐसा मैथ्स का इक्वेशन पढ़ा है अपन ने जिसमें 2 अननोन निकालने? नहीं. तो जो XB है उसे निकालना पड़ेगा पहले, बिकॉज यू हैव P नॉट A, यू हैव P नॉट B, यू हैव P नॉट A. नाउ P नॉट B कौन सा लेंगे? ऑफ कोर्स यू आर टेकिंग P नॉट B एज हेप्टेन, बिकॉज B इज दैट वन जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है. दैट्स ओके. बट यू वांट टू डिटेक्ट XB, नो प्रॉब्लम. आपको बेटा वेट दिए हुए हैं, आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लो. XB का फॉर्मूला सब जानते हैं, NB अपॉन Na प्लस NB. वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. सो लेट अस डिटेक्ट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेप्टेन. व्हाट इज हेप्टेन? CnH2n प्लस 2 लगा लो फटाफट. Cn 7, 2n 2 7 14 प्लस 2 16. तो C7H16 is your heptane. Now the molecular mass 12 into 7 plus 16 into 1. निकालो जल्दी. What is the molecular mass of heptane? Hurry up. You will be getting it 100 gram per mole. So molecular mass of heptane 100. U कर दो आसानी के लिए. Then what is octane? What is octane? Yes, Cn 8, H2n 16 plus 2 18. So C8H18 is your octane. This is your octane. Detect 12 into 8 plus 18 into 1. हाँ जल्दी.
फास्ट, कितना आ गया? यू विल बी गेटिंग 114 ग्राम पर मोल, 114 U. So you will be getting the molecular mass of heptane as well as you are having the molecular mass of octane. If आपको दोनों के molecular masses मिल गए हैं, what you have to detect now? You have to detect the number of moles because the weight is also given to you. So the next thing, number of moles of heptane. Yes, heptane का weight कितना दिया है? 25 divided by 100. Number of moles of octane, weight is given 35 divided by 114. So 25 by 100 and 35 by 114. So 0.26. Here we have 25 or 26. Let me check because I think it is 26. Let me check in 1 minute only. It is 26, no problem. ये 26 है, इसको 26 कर दो, बाकी तो कुछ करा नहीं है अभी अपन ने, यहाँ पर 26 कर दो बेटा इसको. So this is 26 only. This is the change. 26 by 100. 26 by 100 you will be getting 0.26. This you will be getting 0.26. यहाँ आ रहा है आंसर एंड यहाँ आएगा आपका आंसर 0.31. और भूलोगे नहीं, ये सब घर में हर दिन 2 या 3 न्यूमेरिकल अपने आप करना है टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर, to be very fast in calculation, mathematical calculations. After getting this, you want to detect XB. So very easy. XB क्या होगा? यहाँ लिख लेते हैं अपन XB. XB equal to NB upon NA plus NB. NB mole fraction of what is B? You know what is B? B is your heptane. So mole fraction of heptane. N heptane, that is 0.26 divided by 0.26 plus 0.31. So you will be getting the value of XB as 0.45. 0.45. तो ये सब कुछ हो गया. Now we will apply on this formula and find out the final answer. P total equal to P naught A that is 46.8 plus P naught B that is 105.2 minus 46.8 close the bracket into XB that is 0.45. So only I know this, I agree with you that the calculation में इतना जल्दी भी नहीं होगा कि आप कर लें, बट मैं ये तुम्हें गारंटी दे रही हूँ कि पेपर केमिस्ट्री के जब आएगा ना तो तुम परेशान इसलिए नहीं होगे, तुम्हें सब कुछ आता होगा. सिर्फ न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन करते टाइम तुम्हें थोड़ा टाइम दे ही दोगे, तुम आराम से 3 आवर्स आर मोर देन एनफ. एक बात और आज कहना चाहूंगी मैं, कुछ र्यूमर्स उड़ रहे हैं ऐसे हर तरफ, जैसे ना र्यूमर्स फैल रहे हैं हर तरफ कि हो सकता है CBSE कोर्स कम कर दे, ये वाला चैप्टर काट दे, वो चैप्टर काट दे, ये कर दे. बेटा कुछ भी कर दे, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, CBSE कुछ भी काट दे, नीट और IIT के कोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा. अब अगर खाली CBSE करके बैठना है बस ऐसे, या MP बोर्ड करके बस बैठ जाना है, अब 12th के बाद कुछ नहीं करना, बैठे हुए हैं हम, तो ओके तुम इन सब र्यूमर्स पे जाओ, और कोई पक्का नहीं है कि क्या होगा, इसलिए कोई भी र्यूमर्स पे मेरा बच्चा नहीं जाएगा. हर चीज जो पढ़ाई, र्यूमर्स भी क्या कम कर देगा, अभी क्या कम कर देगा, हमें क्या पता क्या कर देगा, हमें क्या पता. हो सकता है कि हर कोई से चैप्टर कर दे कम, तो हर चैप्टर थोड़ी कम कर देगा, तो हो सकता है कुछ भी कम नहीं करे. तो प्लीज रिमेंबर दिस. बट IIT अपना स्टैंडर्ड को लो नहीं करेगा, नीट अपना स्टैंडर्ड को लो नहीं करेगा, बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं वो अपने स्टैंडर्ड को कभी भी खराब नहीं करेंगे कि कुछ भी कर दिया और कह दिया कि हाँ चलो बस एडमिशन मिल गया. तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, डोंट गो फॉर एनी र्यूमर. नाउ राइट एंड कंप्लीट द क्वेश्चन वेरी फास्ट. अ गुड क्वेश्चन अगेन. ओके हो गया? अगर हो गए हैं तो इसके बाद वाले क्वेश्चन पे चलते हैं. वो भी हर क्वेश्चन, मतलब ये वेपर प्रेशर के तो सारे ही क्वेश्चन, और सॉल्यूशन में तो 100% है ना, जैसे एक 100% एक न्यूमेरिकल तो आना ही आना है ना. तो अगर आप भाग रहे हैं और आप मतलब एक सॉरी टू से स्टूपिड बिहेवियर कर रहे हैं कि नहीं मुझे न्यूमेरिकल नहीं करना, मैं तो आइडियल सॉल्यूशन पढ़ूंगी, खूब अच्छी तरह पढ़ूंगा, नॉन आइडियल को रटूंगा, रट लो 2 नंबर मिलेंगे बस. न्यूमेरिकल करना है, कोई बच्चा को फोबिया नहीं होगा न्यूमेरिकल से, समझ गए. नीट में न्यूमेरिकल आ रहा है लगातार पिछले 10 साल से, जेई में आ रहा है, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना ही आना है.
तो हमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बढ़िया करना है। क्लियर? सो दिस इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमने करा। आफ्टर दिस ऑल्सो जो न्यूमेरिकल आ रहा है बेटा वो भी बहुत बहुत बढ़िया और मतलब उसमें भी एक नई चीज है जो आपको बताई जाएगी। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। दिस वन वी हैव डन इट। नाउ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी नंबर है, अगर नंबर डाल रहा हो तो नंबर डाल लो, नंबर नहीं डाल रहा हो, फ्री बैठे हो तो लाइक कर दो, क्लिक करके लाइक कर दो। क्या जा रहा है तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, हमें थोड़ा अच्छा लग जाएगा कि हाँ भाई हम मेहनत कर रहे हैं। एंड ऑल आर हैविंग वेकेशंस, many people having vacation except the teachers which are continuously working day night. So after listening all this you can like the video also. So next question, again a good question. Right, the vapor pressure of water, the vapor pressure of water. For vapor pressure we can write, अगर टाइम है तो पूरा लिख लो, मतलब मैं VP लिख रही हूँ। The vapor pressure of water is, vapor pressure of water is 12.3 kilopascal. 12.3, एक बात ध्यान रखो, उससे पहले वाला क्वेश्चन में भी किलो पास्कल था। नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू पास्कल, यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कहीं और पास्कल थोड़ी लिखा हुआ, तो कीप इट एज इट इज। At 300 Kelvin, even for the temperature we are not having any like in formula anything for temperature, but it is given, always it will be given, तो उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Calculate the vapor pressure, calculate the vapor pressure, again I will write vapor pressure VP of, calculate the vapor pressure of 1 molal solution of 1 molal या मोलल कह दो, कुछ भी कह दो, solution of non-volatile solute, of non-volatile solute. Calculate the vapor pressure of 1 molal solution of non-volatile solute in it. You please, without wasting a minute of time, you should write again 3 star, again a platinum question. Platinum गोल्ड से महंगा होता है, यानी प्लेटिनम यानी गोल्ड से भी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। राइट डाउन फास्ट। ओके, नाउ क्या अच्छाई है? आप कहोगे मैडम क्या अच्छाई दिख रही है? भाई हमें नहीं समझ आ रहा क्या अच्छाई ऐसी दिख गई इसमें। आप ऐसा करिए, आप खुद कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छाई क्या है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, अंडरलाइन करो जहां जहां मैं कर रही हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। ठीक है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलार सॉल्यूशन of non-volatile solute into it. First of all, let us decide what is the known quantity and what is the unknown quantity. This we have to decide first. So, remember, vapor pressure of water, that is pure water, this is P naught A. So, what is P naught A? 12.3 kilopascal. Am I right? क्योंकि ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है अकेला। फिर कह रहा है कैलकुलेट, क्या निकालना है? वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलाल सॉल्यूशन, जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी डला है। दैट इज व्हाट इज द अननोन? योर अननोन इज PA. PA विल बी योर अननोन। आई होप इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट कि हम इतना भी घबरा जाएं कि नहीं भाई ये तो प्लेटिनम है तो हमसे करेगा नहीं। प्लेटिनम का मतलब हम कर सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे। क्या फॉर्मूला लगेगा? जरा रिकॉल तो करो फॉर्मूला जो दिए हैं तुम्हें। जल्दी लिख दो, जरा कमेंट में लिखो, आधे मिनट बाद मैं बताऊंगी। लिखो जल्दी, देखती हूँ किसको कौन मेरे साथ कर रहा है। फास्ट। ठीक है, PA इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स है। PA राउल्स का सिंपल फॉर्मूला, ना कोई रिलेटिव की जरूरत है ना किसी चीज की। PA ये फॉर्मूला है, PA इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स है, ये फॉर्मूला है। PA निकालना है, P नॉट A दिया हुआ है। XA क्या होगा बेटा? क्या होगा XA? बताओ जरा क्या होगा?
Na upon Na plus Nb. What is XA? Mole fraction of what? XA. Na upon Na. What is this? Vapor pressure of solution. P naught A. P naught is given XA. Na upon Na plus Nb. What is Na? Number of moles of water. What is Nb? Number of moles of solute. कौन बताएगा कि Nb कितना है यहाँ पर? कितना है Nb? देख के बताओ मुझे. 1 मोलाल. 1 एक मोल. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 1 मोल. लिखो एक लाइन जल्दी से. 1 मोलाल सोल्यूशन मीन्स 1 मोलाल सोल्यूशन मीन्स number of moles of solute equal to 1 mole. Number of moles of solute equal to 1 mole. Okay, so this is the the formula and the statement. Now let us detect XA first. So we know that XA equal to what? Na upon Na plus Nb. This is your XA. So XA will be equal to Na upon Na plus Nb. What is Na? Number of moles of water. Again the same thing. भूल गए होंगे भोले. But you should remember in 1 molar. मोलाल का मतलब क्या? Number of moles in 1 kg. क्या बताया था मैंने? In 1 kg और in 1 liter number of moles of water हमेशा 1000/18 यानी कितना? 55.55. That is 55.55. Have you remember it? Yes, of course. So XA will be equal to, कुछ नहीं दिया है. ये प्लेटिनम वाला क्वेश्चन क्यों है? तुम्हें पता है क्यों है? क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है उसमें. क्या दिया है? खाली एक पी नोट दे दिया है. बट ये पता होना चाहिए कि ये सब हमने पढ़ा हुआ है. ये सब हम अमीना मैडम के स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है. ये सब चीजें हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है. सो प्लीज रिमेंबर दिस. Na, yes, 55.55 upon Na 55.55 plus 1. So XA 55.55 divided by 56.55. हो गया क्वेश्चन, बढ़ गया, बस हो गया. Now PA equal to, what is P naught A? 12.3 into 55.55 divided by 56.55. So the answer will be of the platinum question, the answer is 12.07 kilopascal. 12.07 kilopascal. और मैं तो एक बात पक्का कह रही हूं, इतना सारा डेप्थ में पढ़ाने के बाद अगर कोई बच्चा इसके बाद भी फायदा नहीं उठा रहा क्लासेस से और अपने आप क्वेश्चन नहीं कर रहा, तो that one is the loser, not anyone else. I am telling to you again I am telling the same statement. तो समझो ये बात, समझो डेप्थ, पढ़ाई की डेप्थ कहाँ जा रही है, कहाँ तक दिया जा रहा है पढ़ाई, समझो इस बात को. एंड प्लीज कंप्लीट राइटिंग द क्वेश्चन. एंड हर जो प्रीवियस नॉलेज है वो कब याद रहेगी? जब आप रिवाइज करोगे. अब जैसे किसी ने 55.55 पढ़ा ही नहीं वाली वीडियो देखी नहीं है, घर में बैठे हैं आराम से, तो उसे क्या पता कि 1 मोलाल सॉल्यूशन में 55.55 है. किसी को यही नहीं पता कि 1 मोलाल का मतलब क्या होता है. सो प्लीज टेक केयर. चैप्टर आधे से तकरीबन हो चुका है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया आधे से. अब पढ़ो ना उसको, आप आराम से करो उसको काम, उस पर. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो ये वाला हो गया होगा, अब मैं मिटा रही हूं उसको. नाउ वी विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. वो आईआईटी में आ चुका है. आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है वो, जो कि एनसीईआरटी का है. मतलब वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आईआईटी, जेईई, नीट, एडवांस सब में आ रहे हैं लगातार. तो वो आईआईटी में क्वेश्चन आया था और वो अपन अब करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो वाला होगा. So now write, calculate the mass of non-volatile solute. Calculate question. Calculate the mass of non-volatile solute. Calculate the mass of non-volatile solute
ठीक है, मतलब हमें WB चाहिए. इन ब्रैकेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट वन और दैट लिक्विड इज गिवन टू अस. सो इन ब्रैकेट यू कैन राइट मॉलिक्यूलर मास 40U. मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है उसका, उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का. WB इज अननोन एंड मॉलिक्यूलर मास इज गिवन, which should be dissolved in 114 gram octane, which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure, to reduce its vapor pressure, to reduce its vapor pressure to 80%. Hurry up, finish writing fast, time is less. Hurry up children, please complete the line fast. Done? Now, I want to check the answer in NCERT because a very special thing here, in this question, the answer in IIT was different and the answer in NCERT is different. So, this is the reason I want to check कि ये जो नई NCERT है इसमें उन्होंने क्या आंसर दिया है. अच्छा, नई NCERT में 10 ग्राम ही दिया है. सो ठीक करा है उन्होंने, कोई बात नहीं, अपन कर रहे हैं. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जो न्यू NCERT जो लास्ट ईयर पब्लिश हुई है उसमें 10 ग्राम दिया है आंसर, और जो NCERT पुरानी थी 2 साल पुरानी उसमें 8 ग्राम दिया था आंसर. ये क्या बात है भाई, आंसर 8 ग्राम है कि 10 ग्राम है. अभी में तुम्हें सब समझ में आएगा ये क्या चक्कर चल रहा है 8 और 10 का. ये IIT में क्वेश्चन आया था, ये NCERT का क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टार लगेंगे. इसमें तुम्हारी चॉइस है, प्लेटिनम लिखो या डायमंड लिखो या गोल्ड लिखो, तुम्हारी चॉइस है, मैं नहीं बता रही. जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम लिख लो, ठीक है. नाउ क्या कह रहा है, WB इज अननोन. क्या चीज अननोन है मेरे पास, WB इज माई अननोन. वेरी गुड. मॉलिक्यूलर मास इज गिवन टू मी MB 40U. 114 ग्राम ऑक्टेन इज माई WA. सॉल्वेंट है ये मेरा जिसका 114 ग्राम है, और उसका मॉलिक्यूलर मास जो है बेटा वो अभी निकाला था ऑक्टेन का, वो भी 114U है. ये अच्छी बात है कि हमें मॉलिक्यूलर मास इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने निकाल लिया था, तो भी याद है अभी तक कम से कम. तो WB इज अननोन एंड कह रहा है कि कितना सोल्यूट का मास डालोगे ऑक्टेन में ताकि उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाए, कितना 80%. मतलब पहले कितना था 100%, मतलब इनिशियली इट वाज 100, मतलब P0A 100 था स्टार्टिंग का. जब उसमें सोल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर घट के कितना आ गया 80, वेपर प्रेशर हो गया 80. समझ गए मेरी बात, बढ़िया. अब सुनो मेरी बात, पहले मैं एक काम कर रही हूं, ध्यान से सुनना. मैं जो NCERT में फॉर्मूला है ना उससे सॉल्व कर रही हूं, मैं कुछ नहीं कर रही. अभी तुम लोग 1 मिनट समझ लो जरा सा, भले आज क्लास 5 मिनट ज्यादा हो जाए, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं. वैसे नॉर्मली अपनी क्लासेस 2 घंटे की होती हैं, आजकल सिर्फ 45 या 50 मिनट्स की हो रही है, तो इतनी ज्यादा मतलब थकने की जरूरत नहीं है. P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू WB है ना अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA. ये हमारा क्वेश्चन था. P0A जैसे उसने जो कहा है 100, अब हो गया रिड्यूस 80 में अपॉन 100 इक्वल टू WB निकालना है. MB इज गिवन टू मी 40, MA मेरा 114 है, WAB मेरा 114, ये दोनों चले गए, गायब हो गए. ये हो गया आपका 20/100 इक्वल टू WB/40. ठीक है, ये तो सिंपल मतलब सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ मैं, कुछ खास नहीं. ये आपका ये चला गया, तो ये हो गया आपका 1/5 इक्वल टू WB/40. तो WB इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/5, यानी कितना हो जाएगा 8 ग्राम. 2 साल पुरानी यानी 1 साल यानी 20 वाले से पहले 8 ग्राम ही दिया था NCERT ने आंसर.
अब ये क्या चक्कर है कि अभी एनसीईआरटी 10 ग्राम क्यों दे रही है और एनसीईआरटी सॉल्व तो कर नहीं रहे, 10 ग्राम लिख के चले गए आगे एनसीईआरटी वाला, अंदर तो वो सॉल्व कुछ नहीं कर रहा, अंदर तो उसने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला दिया है, तो बच्चा तो यही फॉर्मूला लगाएगा ना भाई। अब सुनो जरा ध्यान से बात, अब आएगी यहाँ पे गोल्ड और डायमंड वाली बात, जो दूसरा नहीं बताने वाला तुम्हें, ये बताएंगे यहाँ जो खड़ा है। क्या बताई जा रही है बात, एनसीईआरटी ने कहा था कि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन से डील कर रहे हैं, बिल्कुल डाइल्यूट नहीं है ये, 2 मास और नॉन ओवर, से तुम्हें क्या पता डाइल्यूट है, कैलकुलेट द मास, वो मास मांग रहा है हमसे, हमें नहीं पता डाइल्यूट है, हमें क्या पता कितना मास है। और वैसे भी इस वाले फॉर्मूले से 8 ग्राम आ रहा है, तो 8 ग्राम कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब 0.1 0.01। अब सोचो ये एनसीईआरटी की चालाकी मानती हूँ मैं, इसे मैं एनसीईआरटी की चालाकी मानती हूँ। क्यों चालाकी मानती हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला आप दे रहे हो और आप आंसर ले रहे हो पीछे 10 ग्राम, यानी आप फॉर्मूला आईआईटी वाला दे रहे हो। जब ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था, आईआईटी एडवांस में, तो इसके 8 ग्राम भी एक ऑप्शन था और 10 पे नंबर मिले थे 4 और 8 वाले को मिले थे 5 कम, जबकि उस साल वाली एनसीईआरटी में 8 ग्राम ही लिखा हुआ था। सोचो आपने, तो क्या ये सब लंबी बातों का मतलब, फॉर्मूला अगर जनरल फॉर्मूला जहां पर डाइल्यूट या नॉन डाइल्यूट कोई सा भी सॉल्यूशन लेते हैं वो हमें याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है P0A माइनस PA अपॉन PA। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये फॉर्मूले से ही 10 ग्राम आएगा। इसको तुम लिखे रहने दो अभी, लेकिन असली लिखो एक्चुअली करके, द सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, द सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, अंडरस्टूड। सो राइट, तो सो द फॉर्मूला करके, सो द फॉर्मूला इज P0A माइनस PA अपॉन PA, नॉट P0A अपॉन PA इक्वल टू, सब कुछ वही रहेगा, बस सिर्फ यहां पर डिफरेंस था, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई, यहां था 100, यहां आएगा 80। यहां पर जो शॉर्ट करा था वही कर लो, यहां शॉर्ट करके कितना आया था बेटा, WB बाई 40 ना, यानी हाँ WB बाई 40 कर दो, यहां शॉर्ट में जल्दी से करने अपन, WB बाई 40, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 80 इक्वल टू WB बाई 40। WB क्या हो जाएगा 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई वॉट 80, 0 से 0 कटा, 4 से ये 2 से ये 10 ग्राम। वाह एनसीईआरटी वाह, आप दे रहे हो आंसर 10 ग्राम, फॉर्मूला कुछ नहीं दे रहा हो, बच्चा तो यही लिख के आएगा ना 8 ग्राम, और किसी ने नई किताब में खरीदी होगी तो पुरानी में तो 8 ही लिखा है, आप उसका नंबर काट लोगे। तो मतलब ये बातों करने का इतना मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये फॉर्मूला डायमंड वाला फॉर्मूला है, जब भी क्वेश्चन आएगा आईआईटी में नीट में यही लगाना है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कह रहा है तो फिर ये लगाना, अगर वेरी डाइल्यूट कह रहा है, और जनरल ऐसा क्वेश्चन आए तो अब नई एनसीईआरटी में 10 ग्राम ही दिया है आंसर। जल्दी लिखो, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, और इंजॉय करो लर्निंग, खुश रहो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दिए जा रहे हैं क्लासरूम में, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये है एक्चुअल लर्निंग, जिसकी वजह से आते हैं 100, 99, 98, 95 अबव। सो ऑल द बेस्ट, गुड डे, बाय।